Hello students. Today we are going to learn about probability. This chapter is very much useful for board examination and weightage of this chapter in board examination, that is 12 marks. So 1 marks MCQ in section A, 1 marks very short question section B, no question in section C. In section D, 2 question 3 marks, 3 marks, and 1 question in section E4. So total weightage of this chapter is 12 marks. Now, our first definition, that is random experiment. The experiment which can be independently repeated under identically condition and all its possible outcomes are known, but which of the outcomes will appear cannot be predicted with certainty before conducting the experiment is called random experiment. So, so basically random experiment क्या है? So random experiment का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट है वो आप रिपीट कर सकते हो, विच कैन बी इंडिपेंडेंटली रिपीटेड. मतलब जैसे आपके पास एक कॉइन है, तो जब जब आप टॉस करते हो तो आपको ये मालूम है कि एक कॉइन के अंदर टू आउटकम्स पॉसिबल हैं, हेड या टेल, वो सबको मालूम है. लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि जब आप टॉस करोगे तो एग्जैक्टली क्या मिलेगा. यू कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते. हाँ, आपको ये मालूम है हेड आएगा या टेल, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलेगा वो नहीं मालूम है. अभी आईपीएल चलता है तो क्रिकेट मैच के पहले वो टॉस करते हैं, दोनों कैप्टन को मालूम है कि हेड होगा या टेल होगा, तो उनको पॉसिबल आउटकम्स क्या है वो मालूम है, लेकिन एग्जैक्टली क्या मिलेगा वो नहीं मालूम. तो दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. जैसे आप बोर्ड की एग्जाम दोगे तो आपको ये मालूम है कि आप पास तो होगे, लेकिन कितने परसेंटेज आएंगे वो एग्जैक्टली आप नहीं बोल सकते. दैट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट. नाउ सैंपल स्पेस, the set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space of that random experiment. The sample space is generally denoted by U or S. So, denoted by U or S. The elements of sample space are called sample points. अगर आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके जो टोटल आउटकम्स रहेंगे दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस. जैसे आप बोर्ड के अंदर स्टेट की एग्जाम दोगे तो 0 मार्क्स हो सकते हैं या 1 2 3 अप टू 100 हो सकते हैं. तो टोटल पॉसिबिलिटी होगी 0 to 100, दैट इज सैंपल स्पेस. ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके आउट ऑफ 100 में से 100 आएंगे, 99 वाले भी होंगे, 98, 45, 35, 0 मार्क्स वाले भी होंगे. So the set of all possible outcomes of random experiment, that is called sample space. Here I will provide you some example. Toss a balanced coin. Okay, whenever we tossed any balanced coin, we all know that in each coin there are two possibilities, head or tail. So head मिलेगा या tail मिलेगा. So sample space of this random experiment, that is head or tail, और यू कैन से टेल और हेड दोनों सेम ही है, तो ये हो जाएगा सैंपल स्पेस. नाउ सेकंड एक्सपेरिमेंट, थ्रो अ बैलेंस्ड डाई विद 6 faces with numbers. So whenever we tossed any die, so there are 6 possibility, 1 2 3
4, 5 and 6, and we all know that about this event, but एक्चुअली एक्सपेरिमेंट के बाद क्या आएगा वो आपको नहीं मालूम है। तो उसका जो पॉसिबल आउटकम्स है 1 मिल सकता है, या 2, या 3, या 4, या 5, या 6। दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। U is equal to 1 to 6। Now finite sample space, if the total number of possible outcomes in the sample space is finite, then it is called a finite sample space. So any experiment having total number is countable, limited, you can easily calculate, that is finite sample space। आप कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो तो उसके जो टोटल इवेंट है वो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड फाइनाइट सैंपल स्पेस। जैसे कॉइन आप टॉस करो तो आपको मालूम है हेड मिलेगा या टेल, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो ये फाइनाइट है। ऊपर ये जो एग्जाम्पल है जिसके अंदर आपने एक डाई को टॉस किया तो 1 2 3 4 5 6, इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, सो दैट इज कॉल्ड फाइनाइट, आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, तो वो फाइनाइट सैंपल स्पेस है। नाउ इनफाइनाइट सैंपल स्पेस, if the total number if the total number of possible outcomes in the sample space of random experiment is infinite, it means you cannot calculate it, so it is called an infinite sample space। अगर आप कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट लेते हो उसके जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स हैं वो आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते, अनलिमिटेड है, इनफाइनाइट है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, सो इलेक्ट्रिक बल्ब लाइफ, अब बल्ब की लाइफ एग्जैक्टली कितनी है वो तो आपको मालूम नहीं है। आपके घर में बल्ब होगा तो कई ऐसे भी होंगे वो 6 मंथ में आउटडेटेड हो जाएंगे, 1 मंथ या 1 ईयर, ऐसे भी होंगे जो 2 ईयर से भी वर्क कर रहेंगे। सो लाइफ ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, दैट इज इनफाइनाइट सैंपल स्पेस। तो क्या याद रखना है, if the total number of possible outcomes in the sample space is infinite, means you can not calculate this experiment, that is called infinite sample space। तो एक दो एग्जाम्पल से थोड़ा समझेंगे हम अच्छे से। Two balanced coins are tossed simultaneously, write the sample space of this random experiment। So whenever we tossed two coins, on each coin there are two possibilities, head or tail here, but if I am tossed two coins simultaneously means together, so 2 square, so there are 4 possibilities of this random experiment। It is possible that both coin having head, HH, you can see that first coin having head, second having tail, head tail, first coin tail and second having head, tail head, and both the coin having tail, TT। So 4 possible outcomes of sample space of random experiment। Now 2 balanced dice are thrown where each dice has number 1 to 6 on the 6 sides, write the sample space of this experiment। Here we have to toss the 2 dice, on each die there are 6 events, but if we toss the 2 dice simultaneously, 6 square, that is 36 events are possible। 1 1 is possible, 1 2 is possible, 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6, 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6,
सो टोटल पॉसिबिलिटीज 36 हो सकती है। नाउ थर्ड एग्जाम्पल, राइट द सैंपल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट of randomly selected three numbers from the first four natural numbers. Here we have four natural numbers 1, 2, 3, 4, and we have to select any three numbers. तो आपसे एक दो तीन चार उनमें से कोई भी तीन नंबर सिलेक्ट करने हैं रैंडमली। तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? एक पॉसिबिलिटी हो सकती है 1, 2, 3 सिलेक्ट हो जाए, या 1, 2, 4, या 1, 3, 4, या 2, 3, 4। अब 1, 2, 3 ले सकते, 2, 1, 3 नहीं ले सकते। 1, 2, 4 लिया तो फिर 4, 2, 1 नहीं ले सकते, रिपीटेड नहीं होना चाहिए। सो दीज आर द रैंडम एक्सपेरिमेंट। नाउ इवेंट, तो इवेंट क्या है? अ सबसेट ऑफ द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इज एन इवेंट। The events are generally denoted by letters A, B, C or A1, A2, A3. The set formed by the sample points showing favorable outcomes of an event. A will be subset of the sample space U. So any event A associated with the random experiment in the subset of sample space U, this is denoted by A subset U. तो बेसिकली क्या है इवेंट? तो आपका जो सैंपल स्पेस होता है उसके जो रैंडम एक्सपेरिमेंट के जो अंदर जितने भी पॉसिबल चांसेस है वो दैट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे स्टैट का पेपर दोगे तो स्टैट के अंदर सैंपल स्पेस होगा 0 to 100। तो 0 to 100 वो आपका सैंपल स्पेस हुआ, और आपके 95 आए तो 0 to 100 के अंदर ही 95 आए ना। सो वो 95 दैट इज कॉल्ड इवेंट, उसको बोलते हैं इवेंट। जैसे एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम तो अच्छा रहेगा। एंड बेसिकली इवेंट्स आर ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। आपको जो भी इवेंट है वो कैपिटल लेटर के अंदर दिखाने होंगे। सो दिस इज द सैंपल स्पेस यू, और यू के अंदर जो भी सबसेट है दैट इज कॉल्ड इवेंट। One number is randomly selected from the first 15 natural numbers, and the number selected is a multiple of 5. तो 1 to 50 आपके पास नेचुरल नंबर्स हैं, तो 1 to 50 नेचुरल नंबर्स दैट इज कॉल्ड सैंपल स्पेस। ये आपका सैंपल स्पेस हुआ 1 to 50, और आपको क्या चाहिए वो समझ लो तो आपको इवेंट क्या है वो पता चल जाएगा। टोटल 50 नेचुरल नंबर दैट इज यू, and the number selected is a multiple of 5. So out of 50 which number is multiple of 5? ऐसे नंबर जिसको आप 5 से डिवाइड कर सकते हो दैट इज कॉल्ड इवेंट ए। सो इवेंट ए selected number is a multiple of 5. So 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, this is called event। तो जो इवेंट है वो 1 to 50 के अंदर ही मिले ना, 5, 10, 15, 20, 25, 35, तो जो भी मिले वो नेचुरल नंबर्स के अंदर से ही मिले। सो दैट इज कॉल्ड इवेंट। नाउ इम्पॉसिबल इवेंट, द स्पेशल सबसेट phi or null set of the sample space of a random experiment is called an impossible event। Impossible event is an event which never occurs. It is denoted by phi or null set। So impossible means some of the event which never occurs,
कभी पॉसिबल ही नहीं होते। सपोज when we tossed any coin, we all know that total chances of coin that is head and tail। लेकिन आप सोचो कि मेरे को दोनों मिलना चाहिए, हेड भी मिलना चाहिए और टेल भी मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। सैटरडे के बाद संडे है, दैट इज पॉसिबल इवेंट, लेकिन आपको सैटरडे के बाद मंडे चाहिए, दैट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। एंड denoted by it is denoted by phi, or you can say null set, that is called impossible event। Now certain event, the special subset U of the sample space of random experiment is called a certain event। Here the simple definition, that the certain event is an event which always occurs, it is denoted by U। तो बेसिकली सर्टेन इवेंट क्या है? तो जो भी इवेंट है वो होने ही वाला है, दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट डे टू सैटरडे, दैट इज संडे। तो सैटरडे के बाद संडे ही आएंगे, वो तो सर्टेन इवेंट है, वो फाइनल ही है। द नंबर ऑन द अपर साइड डाई व्हेन अ बैलेंस्ड डाई इज थ्रोन इज लेस देन 7। अगर आप कोई डाई टॉस करते हो तो उसके अंदर जो नंबर मिलेंगे वो 7 से कम मिलेंगे, वो सर्टेन इवेंट है। क्योंकि आपको तो मालूम है कि डाई के अंदर 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा नहीं मिल सकता, सो दैट इज कॉल्ड सर्टेन इवेंट। नाउ कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। सपोज U is a finite sample space and A is one of its events। The set of all the outcomes or elements of U which are not in the event A is called complementary event of A। The complementary event of event A is denoted by A dash, A bar, A power C। We will use the notation A dash for complementary event। So suppose U is a finite sample space. Look here. This is the U. This is U value. And A is one of its event। तो U है वो आपका सैंपल स्पेस है, और जो A है उसका एक इवेंट है। The set of all the outcomes of element U which are not in the event A। तो ऐसे इवेंट जो U के अंदर हो लेकिन A के अंदर नहीं हो, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, एंड इट इज डिनोटेड बाय A dash इन दिस चैप्टर। तो A dash का मतलब ये हुआ कि ऐसे इवेंट जो U के अंदर है लेकिन A के अंदर नहीं है, A dash कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट ऑफ इवेंट A, नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A, U माइनस A। एक एग्जांपल देता हूं आपको। सपोज U के अंदर 1 2 3 4 5 है और A के अंदर है 1 3 5। तो U के अंदर 1 2 5 है, A के अंदर है 1 3 5 और आपको चाहिए A डैश, मतलब इवेंट A डज नॉट अकर। तो ऐसे इवेंट जो A के अंदर ना हो और U के अंदर हो, तो ऐसे इवेंट चाहिए तो आप कौन सी इवेंट ले सकते हो? तो 1 2 3 4 5 आपको 1 नहीं लेना है, आपको 3 नहीं लेना है, 5 नहीं लेना है। सो A डैश दैट इज 2 4। So A dash means complementary events of event A। Again I repeat, the set of all the outcomes of element U which are not in the event A is called complementary event। तो सिंपली याद रखना है A dash का मतलब ऐसे इवेंट जो U के अंदर हो लेकिन A के अंदर नहीं हो, दैट इज कॉल्ड A dash।
Now, intersection of events. Suppose A and B are the two events of a finite sample space U. The event where events A and B occur simultaneously is called the intersection of two events A and B, and it is denoted by A intersection B. A intersection B means intersection of two events A and B, simultaneous occurrence of event A and B. So here, suppose A and B are the finite sample space of U, the event where A and B occur simultaneously. ऐसे इवेंट जो A के अंदर भी है और B के अंदर भी है, कॉमन बिटवीन A एंड B, दैट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. यहाँ पर देख लो A का डायग्राम है, B, और ये जो A और B के अंदर जो भी कॉमन है, दिस एरिया इज कॉमन बिटवीन A एंड B, सो दैट इज कॉल्ड A इंटरसेक्शन B. मतलब इवेंट A एंड B बोथ अकर्स टुगेदर, दोनों अगर साथ में हो रहे हैं, दैट इज इंटरसेक्शन. सपोज ए के अंदर है 1 to 5 इवेंट, बी के अंदर है 1 3 5 7 9. अब बोलो ए और बी के अंदर क्या कॉमन है? सो 1 इज कॉमन बिटवीन बोथ वेरिएबल, यस. 3 इज ऑल्सो कॉमन एंड 5 इज ऑल्सो कॉमन. सो ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन बिटवीन ए एंड बी. तो ऐसे इवेंट जो ए के अंदर भी हो और बी के अंदर भी हो, तो A intersection B, 1 is a common, 3 is also common, and 5 is also common. So 1 common, 3 common, and 5 common. So A intersection B, 1 3 5. Now union of events. Suppose A and B are any two events of a finite sample space U. The events where the event A occurs or the event B occurs, or both the events A and B occurs, is called union of event A and B. It is denoted by A union B. A union B means event A occurs or event B occurs or both events A and B occurs together, or you can say at least one of the event A and B occurs. So suppose U is a finite sample space and A and B are the events of sample space U. तो U एक आपका सैंपल स्पेस है और A और B उसके दो इवेंट हैं. यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब कंबाइन करना. ऐसे इवेंट वेयर इवेंट A occurs or event B occurs or both the events A and B occurs called union of event A and B. तो A यूनियन B का मतलब ऐसे इवेंट लेने हैं जो इवेंट A के अंदर हो और इवेंट B के अंदर हो और दोनों के अंदर हो. तो यूनियन का मतलब A भी लिखना है और B भी लिख लेना है. सपोज A 1 2 3 4 5, B है 1 3 5 7 9. अब A यूनियन B में A भी आना चाहिए और B भी आना चाहिए. तो A का 1 2 3 4 5, तो देख लो 1 2 3 4 5 आ गया. B का है 1 3 5 7 9, तो 1 भी हो गया, 3 भी हो गया, 7 भी है, 9 भी है. सो A यूनियन B मतलब इवेंट A अकर्स और इवेंट B अकर्स और इवेंट A एंड B बोथ अकर्स. तो आप देख लो A के अंदर है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया. B के अंदर 1 3 5 7 9, तो 1 3 5 7 9 हो गया. सो दैट इज कॉल्ड यूनियन इवेंट. नाउ म्यूचुअली exclusive event. Suppose
A and B are any two events of a finite sample space U. Events A and B do not occur together. समझ लेना ये important definition है आपके लिए. Which means A intersection B is equal to phi null set. Or in other words, event B does not occur when event A occurs, or event A does not occur when event B occurs. Then the events A and B are called mutually exclusive event. So suppose U is a finite sample space. A and B are the events of sample space U. A intersection B is equal to phi means event A and event B do not occur together. अगर इवेंट A और B कभी भी साथ में नहीं हो रहा है, A intersection B is equal to null set, that is called mutually exclusive. Nothing is common between A and B. A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पर A इवेंट है, यहाँ पर B है. आप देख सकते हो दोनों सेपरेट है. नथिंग इज कॉमन बिटवीन A एंड B. एक एग्जांपल से समझते हैं. सपोज A के अंदर है 1 2 3 और B के अंदर है 5 7 9. अब कॉमन निकालो A और B के अंदर, तो 1 2 3 और यहाँ पर 5 7 9. सो नथिंग इज कॉमन बिटवीन A एंड B. A intersection B is equal to phi. So here we can say that both events are mutually exclusive. तो आपको याद रखना है, तो जब भी A और B के अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, A intersection B is equal to phi है, so both events are mutually exclusive. Now difference event, ये भी important है एग्जाम के लिए आपके. Suppose A and B are any two events of a finite sample space U. The set of elements or outcomes where event A happens but event B does not happens is called the difference of event A and B. It is denoted by A minus B. This word is important, A minus B. It is clear from the Venn diagram. Here Venn diagram is given. A minus B, or you can say A intersection B dash, is A minus A intersection B, or A union B minus B. Difference of event A and B. Event A happens, but event B does not happens. Only A happens out of event A and B. So difference event basically क्या है? तो यहाँ पर आप वेन डायग्राम देख सकते हो. इवेंट ए भी है और इवेंट बी भी है. डिफरेंस इवेंट का मतलब इवेंट ए हैपन्स बट इवेंट बी डज नॉट हैपन्स. ऐसे इवेंट जो ए के अंदर है लेकिन बी के अंदर नहीं है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंस ऑफ इवेंट ए एंड बी एंड इट इज डिनोटेड बाय ए माइनस बी. तो उसका मतलब ये हुआ A माइनस बी का इवेंट A हैपन्स बट इवेंट B डज नॉट हैपन्स. एक एग्जांपल से समझिएगा तो अच्छा लगेगा. सपोज यहां पर A के अंदर है 1 2 3 4 5, B के अंदर है 1 3 5 7 9. तो A के अंदर 1 2 3 4 5 है, B के अंदर है 1 3 5 7 9 और आपको क्या चाहिए A माइनस बी. अब A माइनस बी कब मिलेगा? जब आपको ये मालूम हो इवेंट A हैपन्स बट इवेंट B डज नॉट हैपन. तो आपको ऐसे इवेंट लेने चाहिए जो इवेंट A के अंदर हो लेकिन इवेंट B के अंदर ना हो. तो 1 तो कॉमन है तो नहीं ले सकते. 2, अब ये 2 देखो, A के अंदर है B के अंदर नहीं है. 3 इज अ कॉमन बिटवीन A एंड B. 4 इवेंट A के अंदर है B के अंदर नहीं है. 5 इज अ कॉमन. सो A माइनस B मीन्स इवेंट A हैपन्स बट इवेंट B डज नॉट हैपन.
ऐसे इवेंट जो ए के अंदर होने चाहिए और बी के अंदर नहीं होने चाहिए। हम टू नहीं ले सकते, हम टू ले सकते हैं क्योंकि टू ए के अंदर है बी के अंदर नहीं है। फोर ले सकते हैं, इवेंट ए के अंदर है बी के अंदर नहीं, लेकिन वन नहीं ले सकते क्योंकि वन दोनों में कॉमन है। थ्री इज ऑल्सो कॉमन, फाइव इज ऑल्सो कॉमन, सो ए माइनस बी हो जाएगा टू एंड फोर। सिमिलरली फॉर टू इवेंट्स ए एंड बी of a finite sample space U, the set of elements or outcomes where B happens but A does not happen is called as a difference event of B and A. It is denoted by B minus A. It is clear from the Venn diagram given here. So B minus A, or you can say A dash intersection B, or you can say B minus A intersection B, or you can say A union B minus A. So B minus A means difference of event B and A. Event B happens, but event A does not happen. तो आपको चाहिए डिफरेंस इवेंट B माइनस A। तो सपोज U है वो फाइनाइट सैंपल स्पेस है और A और B उसके दो इवेंट हैं। B माइनस A का मतलब ये हुआ कि इवेंट B हैपन्स बट इवेंट A डज नॉट हैपन। इवेंट B हैपन्स मतलब इवेंट B हो रहा है बट इवेंट A डज नॉट हैपन्स। आप देख सकते हो इवेंट B हैपन्स बट इवेंट A डज नॉट हैपन्स। सपोज A के अंदर 1 2 3 4 5 है, B के अंदर 1 3 5 7 9 है, तो B माइनस A के अंदर आपको ऐसे इवेंट लेने हैं जो B के अंदर होने चाहिए और A के अंदर नहीं हो। देखो 1 तो कॉमन है, 3 भी कॉमन है, 5 इज ऑल्सो कॉमन। अब ये 7 नंबर देखो और 9 नंबर देखो, तो 7 और जो 9 है वो सिर्फ B के अंदर है, A के अंदर नहीं है। सो B माइनस A 7 9, तो B माइनस A का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड क्या है? इवेंट B हैपन्स बट इवेंट A डज नॉट हैपन। ऐसे इवेंट जो B के अंदर होने चाहिए लेकिन A के अंदर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका B माइनस A, तो 7 9। नाउ द लास्ट डेफिनेशन, exhaustive event. If the group of favorable outcomes of event of random experiment is the sample space, then the event are called exhaustive event. Suppose A and B are any two events of sample space U. The events A and B are called exhaustive event if the union A union B of the two events A and B is the sample space U, that is A union B is equal to U. तो बेसिकली एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? सो सपोज U is a finite sample space and A and B are any two events of sample space, A union B is equal to U। अगर आप A और B को कंबाइंड करो तो U हो जाए तो वो एग्जॉस्टिव इवेंट है। यहां पर देख सकते हो ये इवेंट A है और इवेंट ये B है। अब A और B को आप दोनों को कंबाइन कर लो तो एग्जैक्टली U की वैल्यू मिल जाएगी, तो ये एग्जॉस्टिव है क्योंकि हाफ के अंदर A है बाकी का B है, तो A और B दोनों का आप कंबाइन करो तो U हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। यहां पर समझ लो U के अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, A के अंदर सपोज है 1 3 5 7 9, B के अंदर है 2 4 6 8। अब हम A यूनियन B करेंगे। A यूनियन B का मतलब A भी होना चाहिए और B भी होना चाहिए। तो A के अंदर क्या है 1 3 5 7 9, तो देख लो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया और 9 हो गया।
बी के अंदर क्या है 2 4 6 8, तो 2 है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। सो दैट इज यू। अगर आप ए यूनियन बी करते हो तो ए भी होना चाहिए और बी। ए के अंदर 1 3 5 7 9, तो देख लो 1 हो गया, 3 हो गया, 1 पॉसिबल, अब 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है और बी के अंदर 2। सो लुक हियर 2, देन 4 6 8, दैट इज यू। तो अगर ए यूनियन बी, आपको यही याद रखना है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू, देन इवेंट ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव। अगर ए और बी को अगर आप कंबाइन करते हो तो एग्जैक्टली अगर आपको यू मिल जाएगा, सो दिस इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट। सो फ्रेंड, दिस डेफिनेशन आर वेरी मच यूजफुल, क्योंकि अगर आपको एग्जाम्पल सीखना है तो ये डेफिनेशन बिल्कुल क्लियरली होनी चाहिए, तब आप कर सकोगे।